Aditya, chapter 2 completed, exercises and theory. Aditya, क्या हो गया यार, बोलो तो कम से कम. We did that rate of work done or rate of energy transfer. This is called power. So we had two different. Aditya, mic not working? Sir, I think उसके network कोई problem है. Okay. Acha, Anika is attending maths class probably? No, sir. No? No. Sir said in the morning in the message, Anika joined. So yeah, I don't have her number. So if someone can send me, Tejasvi, you can please send her number so that I'll talk to her. You asked me to. Yes, I'll send it to you. Okay. Average power कैसे calculate करते थे? Average power is the total work done divided by total time taken. Total work done divided by total time taken is the average power. और instantaneous power के लिए होता था force into velocity. Instantaneous power is force into velocity. Force into velocity or force into speed. Right. So power is rated with the speed with which the work is done, obviously. So now I'll consider two scenarios in which we have to find the power. अब एवरेज पावर के लिए वर्क डन और वर्क डन कहाँ यूज हो रहा है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मे बी वी आर जस्ट लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द वेल और वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग सम स्पीड. So I'll just take few example and you have to figure out what is to be calculated, instantaneous power or average power, and then depending upon the. Okay, so suppose a car starts from rest. A car starts from rest and acquires a speed and acquires velocity v in time capital T. देता हूँ कोई बात नहीं. First is average power. Calculate the average power delivered by the engine. Second is calculate the instantaneous power delivered at time t. Instantaneous power delivered at time t. Right. So car starts from rest. Initially does not have any energy, zero. In time capital T. श्रेय इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? How much work is done on the car? How do we calculate the work done? So Shrey, So V minus U upon T1 minus T2. इसका एक्सप्लेनेशन आएगा यार. मैंने वर्क डन पूछा. ये वर्क डन अपॉन टाइम चाहिए ना एवरेज पावर के लिए. How do we calculate the work done? Sir, force into displacement. कुछ तो पता नहीं है. Kabir, how do we calculate work done in this case? Sir, kinetic energy करना पड़ेगा calculate. Kinetic energy, okay. What kinetic energy? To be more precise, it is work energy theorem. We'll have to apply work energy theorem. So according to work energy theorem, work done is change in kinetic energy.
change in kinetic energy, work done upon total time taken. This is the average formula for average power. Since the work done is always equal to change in kinetic energy, so final minus initial divided by time taken. According to the data given, final kinetic energy is half mv square. Initial kinetic energy is 0. This is capital M is the mass of car. Divided by time taken is capital T. Sorry, this is not W, this is average power. So when we are calculating average power is half m v square by capital T. Instantaneous power, how do we calculate instantaneous power? So P equals F into V. नहीं बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे लाइक पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट्स फाइन सो हमें कौन से टाइम पे वेलोसिटी चाहिए हमें कौन से टाइम पे कैसे फोर्स निकालेंगे सर हमारे पास एवरेज पावर तो आ गया है और वेलोसिटी भी हमें दे रखी है। बट एवरेज पावर से कोई मतलब नहीं है ना वेलोसिटी क्या किसकी दे रखी है कैपिटल टाइम कैपिटल टी के बाद yes yes quickly anyone यस एनीवन यार पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कल पेपर होने वाला है ये तो अपने लेवल का ही क्वेश्चन है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यस क्विकली अध्याय कैसे करेंगे हम रिद्धि अध्याय अरे यार क्या हो गया कोई बोल ही नहीं रहा है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं चाहिए दिस v इज नॉट रिक्वायर्ड राइट क्या सर प्लीज रिपीट आई एम आस्किंग व्हेन हाउ डू वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t this velocity is not at time t this velocity is final velocity सर हम यहाँ पे फिर फोर्स निकालेंगे कैसे? वही तो मेरा क्वेश्चन है यार that is my question yes Riddhi how we calculate force and then velocity we have to calculate instantaneous power के लिए हमें चाहिए force और velocity चाहिए instantaneous power p is equal to f into v force क्या होता है mass into acceleration
right? Right? Yes, sir. यार तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, मुझे थोड़ा गुस्सा सी आ रही है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम गिवन है, बोल के दिया थोड़ा सा हाई है, दिमाग को सरेंडर कर दिया पहले ही। ऐसे नहीं होता ना। फोर्स के लिए चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कैपिटल v, और ये छोटा वाला v है जो हमें t टाइम पे निकालना होगा। दिस इज 0, दिस इज टाइम t, हम किसी बीच के किसी एक इंस्टेंट टाइम t पे कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड एट दिस टाइम, नॉट ड्यूरिंग द होल जर्नी। Acceleration is change in velocity upon time taken. Final velocity capital V, initial velocity 0, time taken is capital T. Acceleration आ गया v upon t. Acceleration को यहाँ पे substitute कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। इस टाइम पे जो velocity बीच में है वो कैसे निकालेंगे? By using the first equation of motion. Velocity at that instant of time t, not capital T, velocity at time small t. V is equal to u is 0 plus a times t, ma into at. ma square into t, this is the instantaneous power, और a को हम लिखेंगे capital V divided by capital T. mv square by capital T times small t, this is the instantaneous power, power delivered at time t. दोनों क्वेश्चन को देख के आपको डिफरेंस भी समझना है, नहीं समझ में आया देन प्लीज आस्क। पावर डिलीवर्ड एट टाइम स्क्वायर टीबी स्क्वायर होएगा ना सर? टीबी स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस पावर, एंड दिस क्वेश्चन इज वेल विद इन योर सिलेबस रेंज, ये एग्जाम में आ भी सकता है। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर इज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। Right? Any doubt? Riddhi? No, sir. Okay. Fine. Done. Tejasvi? Yes, sir. Krimaditya? Yes, sir. So now I was going to talk about the next type of problem जिसमें हम calculate करते हैं instantaneous power delivered by a motor. So हमने एवरेज पावर तो मोटर से कैलकुलेट कर ली थी। एवरेज पावर कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मोटर से अगर आपने वाटर ऊपर लेके गए हो तो एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम टेकन, instantaneous power delivered by motor. तो सपोज ये कोई मोटर का नोजल पाइप है, इसका एरिया ए और इससे लिक्विड बाहर निकल रहा है विद द स्पीड ऑफ v. राइट? अब इसमें हमें पहले निकालना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स से फिर हम निकालेंगे
So power is instantaneous power is force into velocity. इसमें जो force होता था वो हम कैसे लिखेंगे? If you remember हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा था. फोर्स में दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं. पहला जिसमें मास सेम रहता है और वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और दूसरा जिसमें वेलोसिटी सेम हो और मास चेंज होता रहता है, लाइक दी वेरिएबल मास सिस्टम. याद है कुछ ऐसा पढ़ा था हमने? यस. बेटा किसी को याद है? याद आया ना? नहीं. सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो? यस, हमने क्लास जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक टॉपिक पढ़ा था पहले, दैट वाज वेरिएबल मास सिस्टम. देयर आर टू पॉसिबल वेज, बिकॉज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. अगर मास सेम है, कांस्टेंट है, तो ये m इनटू डेल्टा v बाय डेल्टा t बन जाता है. दिस इज f इक्वल टू ma. हाँ सर समझ आ गया. अनदर सिचुएशन की थी हमने जहाँ पे रॉकेट प्रोपल्शन जैसा था, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मास बाहर निकलना शुरू हो जाता है. हाँ सर याद आ गया. आपने कहा था जब मास कांस्टेंट होता है तो m इंटू a लेते हैं, और जब नहीं होता है तो ये जो फॉर्मूला आपने दे रखा है वो. v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t लेते हैं. So यहाँ पे फोर्स होगा v इंटू डेल्टा m बाय डेल्टा t. डेल्टा m बाय डेल्टा t का मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट टाइम. लेट्स से डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इससे बाहर निकल रहा है वो रो, और ये x डिस्टेंस से कहीं लिक्विड सपोज चल के आ रहा है. मास को क्या लिखते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम divided by time t. Mass is density into volume. Density is rho, volume is a into x. v rho a, ये x by t फिर से v बन जाएगा. x by t will become velocity again. So rho a v पहले से था, v स्क्वायर पहले से था, एक v क्यूब और बन गया. यहाँ पे बस ये जो फॉर्मूला हमें समझना था, that power delivered is proportional to cube of velocity. क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आते हैं. अगर हमें स्पीड डबल चाहिए, सपोज स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इज 10 मीटर पर सेकेंड. if we want to double speed, liquid to come out with double speed, what should be the power of that motor? पहले अगर 1 किलोवाट की थी, सो अभी होनी चाहिए उसकी 8 टाइम्स. मतलब स्पीड डबल करने पे पावर 8 टाइम्स होनी चाहिए. सो 8 किलोवाट की मोटर लगाने पे हमें डबल स्पीड मिलेगी. इफ स्पीड इज डबल देन पावर विल बिकम 8 टाइम्स. ये एक स्पेशल केस है, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर पाइप. राइट? बेटा समझ में आया? नहीं आया तो पूछो, आया तो फिर बताओ, आगे बढ़ते हैं हम. सर आ गया. आ गया? वेरी गुड. मिस्टर विहान, जयेश, थोड़ा सा हमने ये कुछ पुराना फर्स्ट चैप्टर का यूज किया. दिस इज फोर्स इन वेरिएबल मास सिस्टम. इसमें से मास लिक्विड का बाहर जा रहा है, टैंक खाली होता जाएगा. उसके लिए फॉर्मूला था v इंटू डेल्टा m बाय डेल्टा t. विक्रमादित्य, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम चेंज करने के दो तरीके हो गए. या तो हम मास चेंज करें, मास कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी चेंज करें,
वेलोसिटी कांस्टेंट और मास चेंज करें। Right. Instantaneous power delivered by any motor is proportional to speed cube of the velocity or cube of the speed. अगर speed double करनी है तो मोटर की पावर 8 times लेनी पड़ेगी. That should be 8 times the power of the motor. Clear? Yes, sir. Tejasvi? Yes, sir. Fine. Okay. Next, कुछ हम अभी special cases कर रहे हैं. Special cases as such. एक हमने कुछ किया था potential energy of any extended body. जैसे अभी कोई particle है तब तो ठीक है. अगर कोई बॉडी लेते हैं तो हम उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी एज इन अ रॉड और अ चेन और समथिंग. क्योंकि एक पार्टिकल होता है तो हमें पता है वो किस पोजीशन पे रखा है. सपोज दिस इज अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l. सेंटर कहाँ पर है इसका? सेंटर ऑफ मास पे. सो हम सारा का सारा मास के सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेंगे और हाइट हो जाएगी l/2. u is equal to mg into h. बट h हम इसके लिए कहाँ यूज करेंगे? The height will be used of center of mass or center of gravity. Center of gravity also we have done. So for extended body, the whole potential energy of rod when it is vertically placed perpendicularly. Second, potential energy of a cone, maybe cone निकालना हो या rod निकालना हो, किसी का भी निकालना हो. So the total mass is assumed at center of mass of that portion or center of gravity of that portion. To calculate potential energy of any extended body. एक पॉइंट की जगह पे अगर ये कोई बड़ी सी बॉडी है तो हम उसका सारा का सारा मास, the whole mass is assumed to be present at its center of gravity. Right. So question जो करना था हमें वो सिंपल सा ऐसा है. Let's say there is a chain. ये कॉन्सेप्ट है. किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम उसका सारा मास उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अज्यूम कर लेंगे and accordingly we'll find out its potential energy. Change in potential energy will be work done. So let's say question is ये table है. Half of the chain is hanging below the table. Half of the chain is hanging below the table. Find the work done to bring this chain back on the table. Right, I'll write the question. Question is, a uniform chain of mass m, length l. Is placed such that placed on a table such that half of the chain is hanging. बेटा कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो पूछ लेना. विक्रमादित्य, तेजस्वी, रिद्धि, एवरीवन. थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने पढ़ाने का मुझे शौक है. कबीर, ये तो पढ़ा ही था हमने. किसी भी बॉडी के लिए अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो
हम उसका सारा मास उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रख लेंगे एंड देन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट. रॉड के लिए ये हो गया mgl/2. सिमिलरली अगर कोई और शेप होगा देन अकॉर्डिंगली हमने सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कर रखी है, सो वी विल पुट द होल मास एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो ये आधी नीचे लग रही है, L/2 इज हैंगिंग और ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन. हमें इसको खींच के टेबल पे रख के रखना है. व्हाट इज द टोटल वर्क डन? हाफ ऑफ द चेन इज हैंगिंग फ्रॉम द एज. Calculate the work done in bringing the chain on the table. The work done in bringing the chain on the table completely. इस चेन को खींच के ऊपर टेबल पे लाना है पूरी तरह से. What should be the work done? Yes. Mr. Shrey, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? Yes. क्या करना चाहिए? Method. What should be the method? कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? वर्क डन करने से क्या चेंज हो रहा है? I mean, this is open Sir, for all. अगर half of the chain नीचे है तो shouldn't the whole chain fall? अरे पकड़े हुए हैं यार. कॉमन सेंस. यहाँ किसी ने पकड़ के रखा है और वो खींचने की कोशिश कर, आपको ये बताना है कि उसको पकड़ के कितना वर्क डन करना है. वो तो कॉमन सेंस है. हाँ? That person is just holding it to keep this chain at rest, but chain is not allowing chain to slip. Now he is pulling it, and what should be the work done by the man? The chain is held. लिख देता हूँ मैं थोड़ा. Uniform chain is held. Now better. Now better. Yes. I just want to discuss how will you calculate, like what is the method of working, what is the conceptual working of this. Sir, the work done like to pull the chain back to normal or to just keep the chain in that position? उस जगह पे जब पकड़ के रखा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसमें किस बात का वर्क डन भाई? पकड़ के रखने इसलिए में तो वर्क डन पूछ नहीं रहा हूँ होता. सर, I thought trick question होगा. नहीं, पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, शुद्ध नॉर्मल इंग्लिश में. कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चेन ऑन द टेबल कंप्लीटली. और अगर हम जितनी चेन नीचे लटक के अगर हम उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो हमारे पास फोर्स आया है उसे वर्क डन के फॉर्मूला में डालें तो हो जाए. एनर्जी से फोर्स कैसे आया? हम यहाँ पे वर्क जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद दैट? आई मीन व्हिच क्वांटिटी इज चेंजिंग? एंड दिस इज ओपन फॉर ऑल. आद्या, रिद्धि, यस, तेजस्वी. सर तो ये देखो, इसका उस वन पार्ट ऑफ द चेन जो लटक रहा है उसको हम मास 1/2 m ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. यस, लेंगे भी. इनफैक्ट द पोर्शन दैट इज हैंगिंग बिलो हैज अ हाफ मास. First I asked what will be the approach, what will be concept, how are you going to solve it? By pulling this, I mean by why this person needs to do work, what is changing, which quantity is changing? So I think potential energy.
फिर तो इसका 1/2 m into g into h हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, क्योंकि पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में। सो जो वर्क डन कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? दैट वर्क डन इज यूज्ड इन changing its potential energy, final energy minus initial energy. Final energy when this whole chain come on the table in that position, initial energy when this was hanging below it. You understood this? Yes sir। So अब final energy, देखो energy potential energy निकालने के लिए हम zero कहाँ लेते हैं? Where we take the potential energy to be zero? On the ground। On the ground. तो यहाँ पे टेबल पे ले लो, हम किसी भी सरफेस पे ले सकते हैं, ये ग्राउंड तो पता नहीं कहाँ पर है, राइट? ग्राउंड बनाओगे फिर HIT लोगे, that will be complicated. We can assume zero potential energy anywhere. So we took potential energy zero to be on the surface. अगर ये हमने जीरो ले लिया सरफेस पे, टेबल पे, ऑन द टेबल सरफेस, so आधी चेन जो टेबल पे रखी हुई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दिस एनर्जी जीरो। इन दैट सेंस अगर हम जीरो से नीचे जा रहे हैं, then the hanging portion is negative energy. Hanging portion is negative energy. बोलो यार, यस नो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो, समझ में आया तो यस बोलो। तेजस्वी अंडरस्टूड? अगर हमने किसी टेबल के ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड के ऊपर जाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे नेगेटिव होगी, Yes, बिकॉज sir. ऑन द सरफेस इट इज जीरो। सो पहले केस में जो टेबल पे हो तो जीरो हो गई, जो हैंग करी वो नेगेटिव होगी, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। कितना मास हैंग कर रहा है? m/2 mg into h कितना लेंगे जयेश? व्हाट शुड बी द हाइट? अब ये एक तरह से वही यूनिफॉर्म रॉड टाइप हो गया, तो रॉड के लिए मास कहाँ अज्यूम करते हैं? at the At the midpoint। एट द सेंटर। तो उसका सेंटर कितने डिस्टेंस पे है टेबल से? L/2। L/4। आधी तो थी ये नीचे, हाफ ऑन द टेबल, हाफ हैंगिंग, उसका मिड पॉइंट L/4 हो गया ना, I see। माइनस mg/8। फाइनल सारी की सारी चेन आ गई टेबल के ऊपर ही, और टेबल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो फाइनल तो पूरे की जीरो हो गई। आद्या, क्या हो गया आद्या? Yes, you're Yes, there. sir. no problem. You understood this question? Oh, yes, sir. Right. Potential energy, sorry, work done will be mg/8. If you choose the surface of the table as zero potential energy, calculation will become quite small, quite easy, and you can solve like this. Right? बेटा इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? विक्रमादित्य, विहान? No, sir. किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए उसका मास कहाँ जूम करते हैं? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सर बस एक चीज समझ में है, अपने L/4 को हाइट क्यों नहीं है? आई मीन हाइट तो वो पूरी L/2 ही होनी चाहिए थी। यार अभी तो यही तो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। हम किसके लिए? एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी की अगर लेंथ है L, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? मिड पॉइंट पे। सारा का सारा मास हम मिड पॉइंट पे अज्यूम कर लेंगे। इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इट वाज नॉट mgl, इट इज mgl/2 बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइंग एट द सेंटर ऑफ द रॉड। समझ गया सर। हाँ, तो जब ये आधा पोर्शन नीचे लटक रहा है
इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पर होगी एंड दैट मिड पॉइंट इज L/4. Right? Yes, sir. Okay. Next is कुछ हम अलग मिसलेनियस टाइप प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब अभी क्वेश्चन इज सपोज देयर इज अ रफ इंक्लाइन प्लेन और इसकी हाइट है कुछ h. This is a rough surface. Angle theta. Mass of this block is m. Initially it is released from rest. It reaches the ground with velocity v0. You have to find the work done by the friction from A to B. Calculate the work done by friction if block reaches the bottom of inclined plane with the speed v0. सर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे और देखेंगे कितनी एनर्जी लूज हुई है, राइट? उतना ही वर्क होगा. ऐसे हिट एंड ट्रायल मत करो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताओ, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया आपने, क्यों किया. ऐसे नहीं, नो डोंट डू हिट एंड ट्रायल. सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जितनी होगी उतनी एट पॉइंट बी बननी चाहिए, पर जब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि देयर इज सम वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. तो वो जितना डिफरेंस होगा उतना ही तो यू नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा. जितना डिफरेंस इनिशियल करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल वेरी काइनेटिक एनर्जी को हम होगा. बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वर्क डन कहा जाता है. द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस गोस टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा, एक ग्रेविटी का, जो आपने बोला वो बिल्कुल परफेक्टली सही है. देयर आर टू फोर्सेस, एक ग्रेविटी और फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली 0 थी, फाइनली हो गई हाफ mv0 स्क्वायर. ग्रेविटी का वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे पहुंचने पे h, so this become mg into h plus work done by friction will be equal to half mv0 square. वर्क डन बाय फ्रिक्शन में जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कम होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव माइनस mgh. दिस इज द आंसर. बट जो इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैं पूछ रहा था वो है कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड यूज करोगे. अगर द सेकंड फॉर्मूला और सेकंड मेथड दैट यू कैन यूज इज द वन व्हिच Vihan said, that will be called conservation of energy, not mechanical energy. Conservation of energy says the loss of energy, loss of mechanical energy is lost in the form of heat due to friction. So initial kinetic plus initial potential minus final kinetic plus final potential, दोनों का जो difference आएगा, that difference goes where, in the form of heat due to the friction. So what you said, that is also correct. Applying the conservation of energy, total initial point A पे energy minus total energy at point B, that loss of energy is because of. अब ये लेकिन पॉजिटिव है, अगर हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉस मतलब हमने ऑलरेडी मान लिया है कि ये बाहर जाता है. दिस इज लॉस, दिस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई it will come out plus 20 or plus 30 because it is the magnitude of the loss. When you calculate work done in this work energy formula, so work done अगर इसमें आ रहा है minus 20, इसका मतलब क्या हुआ, 20 जूल के बराबर की हीट और एनर्जी is lost in the surrounding. Both the things are same, only the representation is different. One is done by work energy theorem. Work energy theorem is that work done by all the forces present in the system will be equal to change in kinetic energy.
यहाँ पर एक ग्रेविटी लग रही है, दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है. फोर्स तो वैसे एक तीसरा भी है, कौन सा? Normal reaction. There is one more force. At any time, if we see, there are three forces: mg, normal reaction from the surface, and friction. But normal reaction cannot do any work. Why? Because it is perpendicular to the surface, perpendicular to the direction of motion. Got it? Yes. Yes, beta. Yes, sir. Understood. Understood. Very nice. ठीक है. So now I am sending you worksheets for this chapter. Next chapter will start next class. थोड़ा सा घटिया सा chapter है. घटिया in the sense more of information based about the machines and all. But we'll do that in detail. Don't worry. The type of machine, type of Sir, levers. machines में भी तो numericals हो सकते हैं, gear ratios and such. But gear वाला part हटा दिया गया. But मैं पढ़ाऊंगा. Don't worry. That gear ratio part is removed. There are numerical. There are many numericals in fact. और टेढ़े मेढ़े numerical भी हैं. Some arrangement of the multiple pulleys. But the gear ratio, inclined plane, that part has been removed from the syllabus. But we will do just for our understanding part. ठीक है. उसके numerical हम थोड़े कम करेंगे. जो आपकी बुक में वो पहले syllabus में था. Inclined plane is also a type of machine. Gear is also a type of machine. Machine is anything which reduces the human effort. That is called machine. Right. Yes. So I'm sending today's worksheet, worksheet number 3. And no, worksheet 3 I am using as okay, so yes, worksheet number 3. This is 25 minutes according to this. This is quite easy. Okay, so worksheet number 3 maybe you will do in homework. Yeah, worksheet number 4. It's written 25. Okay, you have to do both 3 and 4 in the next. उसमें गलती से 25 minutes लिखा है. By default it is written 25 in all, but the number of questions are quite less. You solve these two worksheet. Vihan, do you have हाँ सर, device? अभी मेरा लैपटॉप ठीक हो गया. I can see. अच्छा, okay, fine. Don't take the Google help. सर आपने कहाँ भेजा? ग्रुप में भेजा है बेटा. ओके. और कहाँ भेजना? ठीक है. You solve these two worksheet, and this is more like school stuff. This is exactly like school stuff. बोर्ड के क्वेश्चंस पे बेस्ड ही है ये. जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस है, स्कूल के क्वेश्चंस है. सो डोंट फील कि ये तो बड़ा इजी है. सर दोनों वर्कशीट अभी करनी है? हाँ बेटा, दोनों भी करनी है. वो गलती से 25 लिखा है. एक 15 मिनट की है, दूसरी 20 मिनट की है. So total is 35 minutes only. You can start at 1:40. So by 2:15 you should be able to finish it. I'll start new chapter. कुछ ज्यादा जो मार्क्स आते हैं वो इस चीज से